beta? So today's date. Today's right. Chapter 9 sequences. How much ma'am has done better? I think she's saying that GP has started and last 2-3 questions left. सर 9.3. एक्सरसाइज कर रहे थे हम. Yes, 9.3 exercise. Yes. How many questions you have done better? Till which question you have done? याद नहीं सर. याद ही नहीं. Very good. काफी सारे कटे थे. या तो डाउट पूछ लो. Otherwise, sorry. सर एक बार रिकैप करा दीजिए. Recap concept को बेटा. Yes, sir. ओके ओके, ये सही बोला आपने. राइट राइट राइट. GP. This is geometric progression. Geometric progression. Example beta. Example I am taking. I am writing 2, 4, 8, 16 and so on. Right? So how we can say that this is geometric? If second term divided by first term is equal to third term divided by second term is equal to fourth term divided by third term. So basically if 4 by 2, 8 by 4, 16 by 8 and so on. These values are equal. It means this sequence, this series is a geometric series, right? And what is this known as? What I am doing this thing better? We are finding the ratio of two consecutive, right? So this is known as common ratio. So in arithmetic progression, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या थी अर्थमेटिक की बेटा? कॉमन डिफरेंस. और ज्योमेट्रिक में क्या हो गया? कॉमन रेशियो. तो कॉमन डिफरेंस क्या था? 4 - 2, 8 - 4, 16 - 8. ये इक्वल होना चाहिए था. और जीपी में क्या है बेटा? रेशियो विल बी, इफ रेशियोज आर सेम, कॉमन रेशियो इज सेम, इट मींस दिस इज इन जीपी. सो दिस इज नोन एज कॉमन रेशियो. दिस टर्म इज important, common ratio. So in general, AR square, AR cube and so on, ARn-1 and so on. This is geometric series, geometric progression, where A means first term, R means common ratio. Now nth term denoted by En. So what is the formula of nth term beta? ARn-1. This is basically nth term. Why? Because first term we have r raised to the power 0. In second term we have r raised to the power 1. In third term we have r raised to the power 2, r raised to the power 3 in fourth term. So nth term, what we are the logic behind this series is what? r की power एक कम हो रही है, number at which the place beta, उसकी place पे एक number कम हो रहा है. तो फोर्थ टर्म है ये और इसकी पावर एक कम है. थर्ड टर्म है ये, इसकी एक पावर कम है. ठीक है बेटा? तो इस तरीके से आपको ये अंडरस्टैंड करना. दिस इज nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग. अब ये है फ्रॉम द बिगिनिंग. दिस इज द फॉर्मूला. नॉर्मली दे आर आस्किंग फ्रॉम द बिगिनिंग. नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म फ्रॉम द एंड? एनीवन बेटा? फ्रॉम द एंड. A is equal to Is this visible? En is equal to L into 1 by R whole raised to the power
राइट n बेटा, minus 1. Yes, यही है sir. बेटा फॉर्मूला। एल का मतलब क्या है यहाँ पे, ये बताओ। लास्ट टर्म। लास्ट टर्म, राइट राइट, करेक्ट बेटा। एल का मतलब लास्ट टर्म। इसमें नोट करना है तो बेटा नोट करो, अदरवाइज आई रब बेटा। कर दो बेटा, रब कर दो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट करो। हाँ जी बेटा, क्योंकि अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा फोटो खींच के भेजने के सिचुएशन में नहीं हूँ बेटा। Simultaneously you have to note down. From the This is लिखा nth term denoted by an. From the beginning this is the formula, from the end this is the formula. Now sum to n terms beta. Sum to n terms. The sum of first n terms of a GP denoted by Sn. Beta, till this height is visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Sum to n terms. What is the formula of beta Sn, anyone? A into A times Rn minus 1 upon R minus 1. राइट? क्या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ बेटा? देखना ये फॉर्मूला ठीक है बेटा? दोनों कुछ रेस्ट्रिक्शन है दोनों फॉर्मूले की बेटा? दोनों सर. दोनों वैलिड है। दिस इज वैलिड फॉर व्हाट? आर, वो तो नॉट इक्वल टू तो होना ही चाहिए दोनों केस में, राइट? R greater than 1. वेरी गुड। एंड दिस इज Less ठीक than है। 1. वैसे दोनों ही चल जाते हैं क्वेश्चन में, बट आपको देखना है इफ आर इज ग्रेटर देन 1 देन अप्लाई दिस वन, इफ आर इज लेस देन 1 देन अप्लाई दिस वन। ठीक है बेटा? और क्या होता है बेटा जीपी में? और क्या पढ़ा है आपने? ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा था बेटा, ठीक है? एक और चीज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, देखो पता नहीं वो डिस्कस हुआ है या नहीं। Should I rub this beta? Online student? Yes, sir. Yes. In GP, number of terms, terms in GP when product and sum of terms is given. ठीक है बेटा? यहां पे है नंबर ऑफ टर्म्स, यहां होगा टर्म्स, एंड दिस इज कॉमन रेशियो।
इस पे थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया. If we have number of terms 3, then question what they are in the if the sum of the three terms in GP and product of these three terms is given, तो ऐसी सिचुएशन में मुझे टर्म्स क्या अज्यूम करनी चाहिए वो मैं बता रहा हूं आपको. तो इट इज a by r comma a comma a r. Very good. In this situation common ratio is what beta? R. Right? For 4 beta. Anyone? It is a by R. r cube, a by r, then ar cube. Number of terms is 4 और ये हो गया कॉमन रेशियो r स्क्वायर आया इस केस में. If we have 5, then what beta? a by r square comma a by r comma a comma ar comma ar square. Common ratio is r. तो आपको लॉजिक देखना बेटा. इफ वी हैव इवन नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन रेशियो शुड बी आर स्क्वायर और टर्म्स आपके पास ये है बेटा. ठीक है. और इफ ऑड नंबर ऑफ टर्म्स वी हैव तो आपको ध्यान रखना है ये ऑर्डर होगा और कॉमन रेशियो आर होगा. तो सिमिलरली इफ आई राइट 6 बेटा तो 6 आपका a बाई आर 5, मतलब इन दोनों के यहाँ पे a बाई आर 5 और a आर 5 ऐड कर दो तो 6 हो जाएंगे. ठीक है. और अगर वो 7 में पूछते हैं तो इन दोनों में a बाई आर क्यूब एंड a आर क्यूब ऐड कर दो. क्लियर बेटा. नॉर्मली सीबीएसई में 5 टर्म्स तक आते हैं तो इसलिए मैंने 5 तक के लिखवा दिया. ठीक है. ये डिस्कस हुआ था क्लास में, हो गया था ना, क्वेश्चंस में हो गया था. ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैंने अब आपको ये कॉन्सेप्ट उसमें दे दिया नोट्स में. नाउ नेक्स्ट टर्म इज ज्योमेट्रिक मीन. बेटा कर दूं बेटा, रब कर दूं ऑनलाइन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, ओके ओके. अमीन क्या अटेंडेंस नहीं हुई यहाँ पे? ठीक है. ऑफलाइन में तो 2 हैं ही. अभी ले लेता हूँ जी कॉल के. बेटा दिए एक बार पेन. आरव ग्रेवाल इज प्रेजेंट. 10-9 प्रेजेंट. हिमांशु कुमार बैरवा, राइट? ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा प्लीज गिव मी द अटेंडेंस. आकांक्षा शर्मा इज देयर. Present, sir. Present, okay. And Arav Sharma, Agnish is there. Aishwarya, Present, sir. present. Akshita, Present, sir. Aman, Present, sir. Anshika absent. Arumita, Present, sir. Aryan Sinha, Present, sir. Ayush Sharma, Bhavya Bharadwaj, Present, sir. Bhavya Mishra, Present, sir. Daman, Present, sir. Devansh, Present, sir. Dishita, Present, sir. Galaxy, Gautam Kakkar, Gautam Kumar, Present, sir. Jayant, Kanak, Present, sir. Kana, Timvel,
Present, sir. लक्ष्य, Present, sir. विनय, मानव। प्रेजेंट सर। मानव, ये कौन सा बच्चा आ गया भाई? बेटा न्यू एडिशन। सर नया एडमिशन सर, कल आया है। ओके बेटा, ओके 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 बेटा। प्रज्ञा, Present, sir. ऋषभ बिरसा, Present, sir. रोहन सोलंकी। Sir, present. वेरी गुड बेटा। साहिल, Present, sir. साहिल शर्मा, Present, sir. संकेत, संयम कक्कर, Present, sir. शाश्वत, प्रेजेंट सर। शाश्वत प्रेजेंट। शिवांश, Present, sir. श्रेया मिश्रा, Present, sir. सिद्धांत, Present, sir. सिद्धांत शर्मा इज प्रेजेंट। Yes, sir. सिद्धार्थ जैन, प्रेजेंट सर। वाणी, Present, sir. वंशिका। Present, sir. ओके, Sir Gautam Kakkar present. गौतम कक्कर प्रेजेंट। ओके, 1 2 3 4 5 6 7। लो दीदी, कर दिया दीदी। और कहीं लिखना है? यहाँ लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे वो जगह नहीं आ रही दीदी। नहीं, यहाँ डाला, उसमें नहीं डाला ना। एक मिनट रुको, मैं डाल देता हूँ, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, बस तो संभाल के रखो दीदी। वो थर्ड में। ठीक है बेटा, लो बेटा। चलिए, अब हमें डिस्कस करना था ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन, GM, capital GM, right? First thing is geometric mean between A and B. Geometric mean between A and B. So geometric mean का मतलब क्या होता है? We need to insert a number. We need to insert a number between A and B such that the resulting sequence will be in geometric progression. तो इसकी लैंग्वेज आप ये भी समझ के देखना, इंसर्टिंग वन नंबर। ये मैं लैंग्वेज एमसीक्यू की फॉर्मेट का बता रहा हूं बेटा। इंसर्टिंग वन नंबर बिटवीन ए एंड बी सच दैट S dot T means such that B oblique W means between, such that the resulting sequence will be in geometric progression. ठीक है बेटा? So that is, what is the meaning of this? A, let that number, one number between A and B is G. So such that AGB is in GP. और ये सीक्वेंस GP में कब होगा बेटा, ये बताओ मुझे। This sequence will be in GP when G by A is equal to what? B by G. Online बोलो भाई। B by G. And this implies G square equal to what? AB? AB। And this is G equal to root AB. So this is basically geometric mean between two numbers.
This is the formula of geometric mean between two numbers, beta. Is this clear, beta? Sir, board is not clearly visible. It is blurred. Little bit. Blur आ रहा है? So what should हाँ, I sir. need to do? मुझे बताओ बेटा, क्या करूं बेटा मैं? आगे पीछे करूं कुछ? एक से अब देखना बेटा एक बार, कुछ फर्क पड़ा? All of you are facing the same problem बेटा? शायद इसलिए ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। थोड़ा बस देखो, सबके साथ आ रही है प्रॉब्लम तो इधर से नेटवर्क गड़बड़ है, अगर कुछ इंडिविजुअल्स के साथ आ रही है तो हाँ बेटा सही दिख ठीक रहा है। है सर। ठीक है। अभी ठीक हो गया। हाँ एक बार देखो, एडजस्ट करके देखो बेटा। हाँ और इसको नोट डाउन करो, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग बेटा। थोड़ा आपके जब भी हायर क्लास में जाओगे तो ये आपको नई चीज समझने में हेल्प करेगा, दिस प्रोसीजर। और मुझे बताओ मैं रब कर दूं नहीं कर दूं? ऑनलाइन वाले बताओ भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। यस सर। ओके बेटा, अब मैं जिसका मेन पार्ट ले रहा हूं, देखो now inserting n numbers between A and B such that the resulting sequence will be in GP. Now we have to insert n numbers between A and B such that the resulting sequence will be in GP. Now, simplification of this, let G1, G2, G3 up to Gn be n numbers such that A, G1, G2, G3 up to GNB is in GP, right? ये GP हो गया बेटा। अब क्या कर सकते हैं बेटा? What is R in this situation? R क्या बन सकता है? कॉमन रेशियो। चलो वैसे करते हैं। How many number of terms in this sequence बेटा? Number of terms n+2 N plus n+2 बेटा, right? n+2 And what is the n+2th number? n+2th number of this GP? B, very good, right? And now according to GP formula, what is the n+2th number? Term, नंबर नहीं बोलो यहाँ पे, टर्म बोलो बेटा। यहाँ पे टर्म, तो उसका फॉर्मूला क्या है बेटा? A R n-1 और n की जगह n+2 है, मेरे पास n+1 इक्वल टू B आ गया बेटा, राइट? नाउ फ्रॉम हियर फर्स्ट आई नीड टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ R n+1 इक्वल टू B by A and R is equal to B by A whole raised to the power 1 by n+1। ये स्टेप देखना बेटा, ये क्लियर है? ऑनलाइन बेटा बताओ। यस सर। दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा? Yes sir.
ओके, नाउ R इज दिस, मेरे कॉमन रेशियो का फॉर्मूला आ गया इन दिस सिचुएशन। नाउ मुझे निकालना है n नंबर, उसका फॉर्मूला निकालना है। तो अब इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग देखो बेटा, दिस इसके अकॉर्डिंग देखना बेटा। G1 is what basically? G1 is the second term. Is this correct beta? G1 is the second term of this sequence, and second term, formula of second term is what? A into R. Only AR लिखते हैं अभी। ठीक है बेटा, ये वाली लाइन बताओ, ये क्लियर है बेटा? ऑल ऑफ यू ऑनलाइन? Yes, sir. राइट, ओनली RN को क्लियर है, बाकी किसी को क्लियर नहीं है। Yes, it's clear. यस सर। क्लियर बेटा, बोलते रहो करो बीच में, ये सोच लिया करो कोई बाबा कोई सत्संग सुना रहा है और बीच बीच में जय श्री राम बोल दिया करो। ठीक है बेटा, ऑनलाइन वालों? वंशिका, इज दिस क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes. Okay, okay. Now, G2 is what beta? According to this sequence, G2 is what? Third term. Third term. And third term का फॉर्मूला हो गया AR square. And AR so square. on, अगर आप चलोगे तो this GN is what? इसी सीरीज से निकालो आप। तो GN क्या हो जाएगा इसी लॉजिक से? आप देखो, इफ वी हैव G1 R raised to the power 1 we have G2 R raised to the power 2 we have, ये तो कॉमन चल रहा है, n हो जाएगा बस। Gn is equal to ARN. This is the formula of finding the n numbers between two terms such that the resulting sequence will be in GP बेटा। This is the formula. ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये ध्यान रखना। मतलब अगर मैं पेपर बनाऊंगा तो मैं इस पे इतने सारे ट्विस्ट करके क्वेश्चन बना सकता हूँ, बहुत सारे, जिससे मुझे लगेगा कि बहुत सारे बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे। तो एक बार इसको समझ लो ढंग से, और फिर इसके ऊपर जब क्वेश्चंस करेंगे तब आपको क्लियर होगा। अब मुझे बताओ कोई एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन जो आपको क्लियर ना हुआ हो। मुझे मैम ने बोला था शायद कोई बच्चे एक दो क्वेश्चन पूछे, तो पूछे वाले की पूरा करा दिया मैं। आपका है कोई डाउट बेटा? अच्छा, लास्ट नहीं कर पाए थे क्योंकि मैम ने बोला है आपने 18 तक किया था, तो आगे ट्राई करना। कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिए सारे, ठीक है ना? आप ट्राई करना। ऑनलाइन बेटा कोई बच्चा कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, डाउट पूछना चाहता है तो बताओ बेटा। कोई भी क्वेश्चन आपको लग रहा हो कि सर आप करा दो, ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो बताओ बेटा। मैम ने नहीं कराया हो, डिस्कस नहीं किया हो, या आप चाहते हो कि सर एक बार ये भी करा दो आप। ऑल क्वेश्चन यू हैव डन बेटा? डाउट नहीं है किसी को भी? तो एक बार मिसलेनियस में आ जाओ बेटा। फोर्थ एक्सरसाइज नॉट इन सिलेबस, ठीक है? फोर्थ एक्सरसाइज नॉट इन सिलेबस। अब है मिसलेनियस बेटा। मिसलेनियस में पहले आप देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8। ऑल ऑफ यू बेटा ट्राई क्वेश्चन नंबर 8। मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 8 बेटा। जिन बच्चों ने नहीं किए क्वेश्चन बेटा, आप जब भी प्रैक्टिस करो 9.3 की, स्टिल यू फाइंड एनी प्रॉब्लम बेटा, यू कैन आस्क। हो सकता है आज कुछ बच्चों ने ट्राई ना किए हो क्वेश्चन, लेकिन जब भी ट्राई करो बेटा, क्वेश्चन पूछोगे तब वो डाउट्स क्लियर होंगे बेटा। मैं आपसे 4 बार पूछ चुका हूं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, मिसलेनियस। अ वेरी गुड क्वेश्चन बेटा। एक सेकंड बेटा। The sum of the terms of GP is 315. Sum of the sum terms of GP is 315, whose first term and common ratio are. In this question, first term is 5 and common ratio is 2. Find the last term and the number of terms. We need to find n and last term. These two things we have to find out. And बेटा सम है 315, सम ऑफ सम नंबर्स विच इज Sn इक्वल टू 315। हाँ जी बेटा, सॉल्व करो। देखो, इज दिस विजिबल बेटा?
This height is visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, beta. So sum of some terms is equal to 315. A दे रखा है, R दे रखा है बेटा. We need to find out the L and N. L मतलब last term, or you can represent it like this way also, AN. और check करो answer. Formula of SN beta. What is the formula of SN beta? A R n minus 1 divided by R minus 1 equal to 315. Now we have the values of A and R both. So A is 5. 6 आ रही है, check करो बेटा एक बार. 2 raised to the power n minus 1 divided by 2 minus 1 is 1 equal to 315. Now shift this 5 to this side. 6 आ रही है. 2n minus 1 equal to 315 by 5. तो ये आ रहा है आपका 63. 2 raised to the power n equal to 1 is shifted to this side. This will give you 64. And we'll write 64 as 2 raised to the power. So 2 raised to the power 6 होता है. Right. And this implies n equal to 6. N की value 6 आ रही है. N equal to 6. Correct beta. Now last term beta. A R n minus 1. लास्ट टर्म मतलब a 6 हो गया बेटा. ठीक है, तो ये हो गया 6 minus 1 is 5. A is 5. 2 raised to the power 5. 32 5 जा 160. I think this is the answer बेटा. देखना 160 आंसर बेटा. Right? Now try question number 9. All of you बेटा. Question number 9. Please try question number 9, all of you, online student also. Question number 9. In this question, they have given you the first term of GPA. That means A equal to 1. And sum of third term and fifth term. A3 plus A5 equal to 90. Find the common ratio. This is my task to find out the common ratio. Now, according to GP, what is A3 beta? Third term is what? AR square. AR square. Right. And what is A5 beta? AR to the power 4. AR4 is equal to 90. Now we have A value is 1 beta. Right? So if we put A equal to 1, this implies R4 plus R square minus 90 equal to 0.
It is clear.